कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो पूज महान। कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान।
पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है, कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। सृष्टि सारी कहाँ उसको खोजना, जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं भर की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। ओम शांति। सभी को नमस्कार। Good morning, good afternoon and good evening to all the participants, trainees in this August gathering. A warm welcome to everyone who are connected from the all corners of the world, especially name by name to everyone. A special welcome to all once again. Today, 20th December 2020, we are having 8th session of the special training in Srimad Bhagavad Gita, the most ancient and auspicious epic for a healthy and a happy lifestyle. And we are having a spiritual study of this wonderful mother of all scriptures. And today we are going to study about karma philosophy. And to facilitate us, we have our special trainer connected all the way from Hubli, Karnataka. He's a renowned speaker, writer, author, research scholar, trainer, who has done many such training programs
not only inland and abroad, but on media, delivered a lot of lectures, interviews, TV, radio, and print media. And as per his valuable guidance, a feature film called Shiva Yogi Akka Mahadevi is being produced, and he spreads spiritual, moral, and yogic knowledge for the welfare of the humankind. Born in the village called Himapur in Magadi Taluk of Ramnagar district in Karnataka state, in 1941, on October 5th, he has done his degrees in BSc Agriculture, MA Philosophy, MSc Value-Based Education, PhD Philosophy, and also done PhD in Bhagavad Gita from Mysore University, Karnataka. And he's a social activist, as you all know, and he was also distinguished with various awards. So he has been honored by Rajyotsava Award from the Karnataka state government in 1998, honored by Kuvempu Vishwa Manava Award, honored by Dhimanta Prashasti Award from Hubli Dharwad Municipal Corporation. And so he has been honored with plenty awards and rewards. And the major reward is many, many souls have taken his spiritual guidance and have enlightened their lives. And we're also in his journey, part of his journey, I should say. It's our great privilege that we are also part of his journey to take his benefit. And today, he will be sharing about karma philosophy. We have Sister Onkoyo and all. Can you please switch on your video? Sister Meenal. Sister Meenal, can you switch on your video? Oh my God, the class is full, as you all can see. Welcome, Om Shanti. So today's class is full and we have so many. Brother Ola is there. Brother Punsho is there. Brother Inka. And Brother Eta is there. Brother Wilfred. And we all of us. Wow. Each one, please raise your hand. Dr. Funsho, raise your hand. He comes from very far away. He works in the Lagos state government. And okay, one by one, as I take the name so that they all can recognize you. This is Brother Funsho. Great. Brother Ola. Brother Ola, yeah, he is by profession. What does he do, Gagan Bhai? He's all in all. What I saw him is he does carpentry, he does many things. And Brother Wilfred is a tutor. He teaches French and English to many students all around the lighthouse. And Brother Eta from ex-Nigerian army, and he's also a sports coach. Thank you, Brother Eta. Who is at the back? Brother Inka. Yeah, he's a small-scale businessman. And Sister Onkoyo, as you see her you can see Sister Onkoyo every time because she stays in the center. She's a tailor by profession. She does many things and she's a great cook and she's Baba's wonderful child. Dr. Gagan, raise your hand. Namaste, Dr. Gagan, also Baba's surrendered brother, is staying in the center, and he is a magnetotherapist and also a naturopathist. So he helps many souls to overcome many diseases. Name any disease, whatever it is, he has a solution for it. Children
and Nigerians especially, because he serves them a lot, and old people, they all love him because he helps them to be free from needles and injections and medicines, because he treats them with magnets. Everyone love him a lot. Sister Meenal, let me introduce you also. Sister Meenal has been staying in the center from 5 years, 6 years, and she's from Boisar, Mumbai. She's basically an IT graduate, and her parents and sister, everyone are in the knowledge. Yes, all these families, the people who are in the center, their whole families are in knowledge, but those who are sitting at the back, they are yet to come into the knowledge. But they are all single BKs in their families. Brother Inca, Dr. Funsho, Brother Ola, Brother Wilfred, and Brother Eta, all of them, they are moving all alone in their families in Baba's knowledge. So I welcome all of you today, and I'm very happy that you're joining us in this training program. And once again, I would like to tell that these training programs are going every weekend, and so you all can take benefit of it every Saturday and every Sunday. It's a deep spiritual study on Bhagavad Gita. And also, brother is giving us the scientific study of it. So once again, those flowers are all for all of you, either to welcome. Om Shanti. So once again, I think a lot of noise is at the end from the Legos. Okay. So I welcome Dr. Brahma Kumar Basavaraj Raj Rishiji to this wonderful gathering and to carry on the discussion on Bhagavad Gita. Om Shanti. Om Shanti. Volume is very low, brother. I don't know. But it is audible. Please continue. Om Shanti. Yes, brother. Now we'll start with the interpretation. Those who want English translation, please click and enter the English classroom. Please continue, brother. Om Shanti. Om Shanti. परम पिता शिव परमात्मा के मधुर स्मृति में सभी भाई बहनों को हृदयपूर्वक प्रणाम है। भगवद गीता an ancient script है, ये spiritual script है। भगवद गीता में मानव जीवन को क्या मूल्य होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या कर्म होता है, ऐसे सारी बातों पर इन डिटेल इंस्ट्रक्शंस है। आज हम कर्मा फिलॉसफी इन बर्थ एंड डेथ साइकिल के बारे में शेयर करेंगे। भगवद गीता में बर्थ एंड डेथ साइकिल के बारे में अध्याय 2 श्लोक 27 में ये विचार कहा गया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः
ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है, जन्म लेने वालों को एक दिन मृत्यु भी होता है। जो मृत्यु में शरीर छोड़ता है, उस आत्मा को फिर जन्म होता है। ऐसे जनन मरण चक्र आत्मा को पुनः पुनः होते रहता है। जातस्य हि ध्रुव मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जनन प्राण चक्र जो होता है आत्मा को, ये जनन मरण चक्र के विधि तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कोई भी ये जनन मरण चक्र को रोक नहीं सकता है। हर एक आत्मा को, हर एक जीवात्मा को जनन मरण चक्र निश्चित है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अनादि है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो अमर है। शरीर पंचभूतों से जो हुआ है, ये शरीर एक दिन मरने के बाद पंच तत्व में लीन हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व में ये शरीर मरने के बाद लीन हो जाएंगे। इसलिए शरीर तो अशाश्वत है, आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, अनादि भी है। ऐसे आत्मा कोई भी हो, फिर जनन मरण चक्र में है ही। हिंदू स्क्रिप्टों में महाविष्णु है, महाविष्णु को भी जनन मरण चक्र निश्चित है। श्री महाविष्णु जो जन्म लिया है उसमें दशावतार प्रख्यात। दशावतार में वामन अवतार एक अवतार है। वामन अवतार, उसके पिता महर्षि कश्यप, उसकी माता अदिति देवी। वामन अवतार के नंतर जब परशुराम अवतार होता है, परशुराम अवतार में परशुराम जी का पिता महर्षि जमदग्नि है, माता रेणुका देवी है। विष्णु के दशावतार में दूसरे अवतार एक है और रामावतार।
राम अवतार में राम का पिता दशरथ महाराज है, पिता दशरथ महाराज है। राम की माता कौशल्य देवी है। विष्णु के नेक्स्ट अवतार कृष्ण अवतार होता है। कृष्ण का पिता वसुदेव है, माता देवकी है। कृष्ण के नेक्स्ट बर्थ बुद्धावतार होता है। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन राय, माता माया देवी। ऐसे हर एक जो विष्णु के अवतार होता है, माता पिता होता है। ये धरनी में विष्णु के अवतार होता है। ऐसे हर एक जीवात्मा जो होता है, इसके जन्म और मरण निश्चित है। जात से ही ध्रुव मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये प्रक्रिया है, जो ये नियम है, ये नियम को कोई परिहार नहीं दे सकता है। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तम शोचितुमर्हसि। जो ये प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जनन मरण चक्र फिर होता ही रहता है। इसको कोई शोक करने का, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऐसे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, अनादि है, शाश्वत है। परंतु आत्मा अपना अपना कर्म के आधार से पुनः पुनः जन्म लेता है, ऐसे लिखित है। ऐसे ही दूसरा जैन धर्म है, वो भी बर्थ एंड डेथ आत्मा को एक्सेप्ट करता है। सिख धर्म है, वो भी आत्मा को मानता है, उसको भी बर्थ एंड डेथ साइकिल को मानता है। ऐसे जो भी हिंदू धर्म की ब्रांचेस है, ऑलमोस्ट ब्रांचेस जनन मरण चक्र जो होता है आत्मा को, उसको मान्यता है। परंतु अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य धर्म कुछ है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियन धर्म में बर्थ है, आत्मा को बर्थ है, परंतु रीबर्थ एक्सेप्ट नहीं होता। बाइबल में भी रीबर्थ के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं है। बाइबल के अनुसार मदर का गर्भ में जन्म लेता है आत्मा, बाद में जन्म से मरण तक अनेक काम करता है। उसमें कुछ काम पुण्य भी होता है, पुण्य के काम, कुछ काम पाप के भी होगा। जितना पुण्य पाप के कर्म जो होता है, वो कर्म की जो फल है वो आत्मा में रहता है।
पाप कर्म जो होता है, पुण्य कर्म जो होता है, इसके लिए निर्णय करने वाला भगवान है, ऐसे लिखित है। आत्मा का पाप और पुण्य के कर्म को निर्णय करने वाला, उसके अनुसार फल देने वाला भगवान है। गॉड इज देयर। परंतु कब? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, एक दिन ड्यूम्सडे, डिस्ट्रक्शन डे आता है। उसी समय में परमात्मा पधारेंगे, हर एक आत्मा की पाप पुण्य को निर्णय करेंगे। जो पाप करता है उसको हेल में, नरक में भेजेंगे, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेजेंगे, पैराडाइज में भेजेंगे। ऐसे मान्यता है। ऐसे ही इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही विचार है। आत्मा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बर्थ टू डेथ कर्मयोगी होके काम करता है। उसी समय में जो भी पाप और पुण्य के काम होता है उसको रीबर्थ नहीं है। वो आत्मा रीबर्थ में नहीं आएंगे, वो तो ऐसे ही रहेंगे। जैसे क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, समाधि जो होता है उधर ही होता है आत्मा आफ्टर डेथ। एक दिन आता है क़यामत डे। क़यामत के समय में अल्लाह आता है। जो भी मरण होकर है, उसी आत्मा के पाप और पुण्य को निर्णय करके जो पाप करता है उनको नरक में भेज के, जो पुण्य करता है उसको जन्नत माना स्वर्ग में भेजता है। ऐसे लिखित है। कुछ धर्म पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करता है, ऐसे कुछ धर्म पुनर्जन्म को नहीं एक्सेप्ट करता है। हम इसी बारे में कुछ सोचने से इसका क्या विज्ञान क्या बोलेंगे, क्योंकि आजकल के दिन है विज्ञान क्या बताएंगे उसको एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। इसलिए विज्ञान क्या बोलेंगे, विज्ञान की विचार क्या है। विज्ञान ये जन्म मरण चक्र, बर्थ एंड रीबर्थ, कर्मा फिलॉसफी, इसके बारे में क्या रोशनी दिया है। ऐसे हम सोचे। अभी तक इसको क्लियर एक्सप्लेनेशन कहाँ भी नहीं मिलता था साइंटिफिक द्वारा। परंतु आज हमको ये बात में संशय नहीं करना पड़ता है। आत्मा को जनन मरण चक्र होता है, ऐसे विज्ञान अपना संशोधन के आधार से निर्णय किया है। हिंदू स्क्रिप्ट के आधार में पुनर्जन्म है आत्मा को। क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। ऐसे आधार होने से भी आजकल जो रिसर्च हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एन स्टीवनसन अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर ने जो इंफॉर्मेशन उसको मिला रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, कहां-कहां दुनिया में
जो बच्चे रीबर्थ लेकर आश्चर्यकर बात बोल रहा है, नहीं नहीं मेरा पत्नी, ऐसे 6 वर्ष के 5 वर्ष की बच्चे बोल रहा है मेरा पत्नी उधर है, मेरा बच्चे उधर है, मेरा फोन नंबर ये है, मेरा कार नंबर ये है, मैं ऐसे सिटी में जन्म लिए थे, मेरा दुकान के नाम ये है, ऐसे कुछ बातें बच्चों के मुख से निकल रहा है। ये बात सुनकर पेरेंट्स फंसल हो गया। परंतु ऐसे जो इंफॉर्मेशन जो बच्चों के मुख से मिल रहा है, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोफेसर आइन स्टीवनसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाला वर्ल्ड वाइड स्वयं टूर किया है। टूर करके साइंटिफिक जो इक्विपमेंट होता है, स्टिल फोटो कैमरा, मूवी कैमरा, ऐसे कुछ इक्विपमेंट लेकर कहां कहां बच्चे ऐसे अपना विचार को बोल रहे, उधर जाके स्वयं पेरेंट्स को इंटरव्यू करता है। बच्चे पहले कैसे थे, कभी ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कभी से ऐसे दे रहा है, ऐसे माता पिता से इंटरव्यू लेता है। बाद में वही स्ट्रीट में जो भी सीनियर आदमी होता है उसका द्वारा भी इंटरव्यू करता है। बच्चों को भी, जो बच्चे वो होता है ऐसे कहने वाला, उसको भी इंटरव्यू लेता है, सारी रिकॉर्ड करता है। अपना पैसा खर्च करके बच्चे कहां कहां बोल रहा है तो समझ, बच्चे कहां सिटी में जन्म लिया ऐसे कहेंगे, वो सिटी को माता पिता वो बच्चों को लेके जा रहा है, जाकर उधर ये डेटा ये बच्चे वो सिटी में जाने के बाद उसको छोड़ता है मेन रोड में, फिर वो बच्चे सीधा अपना घर में जाता है, अपना पत्नी को, अपना माता पिता को, अपना ब्रदर्स को, जो भी होता है उसको नाम सहित तो बात करता है, अपना दुकान में जाता है, अपना सर्वेंट्स को भी बात करता है, ऐसे ऐसे। तो जो आश्चर्य करके बात जो डॉक्टर आइन स्टीवनसन कलेक्ट करके थीसिस किया है, ये थीसिस को अपना वर्जीनिया यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है। वो यूनिवर्सिटी स्टीवनसन की जो थीसिस है, रीबर्थ की थीसिस है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स को भेज के जो रीबर्थ के बारे में रिसर्च किया है, दूसरा प्रोफेसर ने उसको स्टडी करके उसको पास किया है। ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो स्टडी करके रिमार्क्स करके पास हुआ है, इसी कारण से वो एक्सेप्ट होके डॉक्टर आइन स्टीवनसन को डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका उसको डॉक्टरेट दिया है, स्पेशल डॉक्टरेट दिया है रिसर्च के कारण, रीबर्थ की रिसर्च के कारण। ऐसे ही इंडिया में बेंगलुरु में निमांस ऐसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट फेमस हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल में जो सेवा करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सतवंत पासरीचा, ये भी रीबर्थ के बारे में रिसर्च किया है। ये रिसर्च को वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करके उसको भी डॉक्टरेट दिया है। ये 2 डॉक्टरेट जो रीबर्थ के ऊपर हुआ है, ये तो साइंस के द्वारा हम लोग को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मिल गया। आत्मा है, आत्मा जनन मरण चक्र में है, आत्मा अपना अपना कर्म के आधार से जन्म लिया है, ऐसे कुछ
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातों पर इंफॉर्मेशन वैज्ञानिक सिस्टम के द्वारा हम लोग के हाथ में है। ये वर्ल्ड वाइड ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्कॉलर्स जानते हैं। रीबर्थ, आत्मा को रीबर्थ और कर्मा फिलॉसफी है, ऐसे मुख्य सब्जेक्ट पर वर्ल्ड के कोने कोने अनेक स्कॉलर्स है। डॉक्टर रेमंड मूडी अपना थीसिस के नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। डॉक्टर रेमंड मूडी की जो रिसर्च ग्रंथ है उसकी टाइटल है लाइफ आफ्टर लाइफ। ऐसे डॉक्टर नेविली रैंडर उसके थीसिस के नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसे डॉक्टर जॉर्ज मिक उसकी थीसिस का नाम है आफ्टर वी डाई व्हाट देन। डॉक्टर आर्थर फोर्ड उसकी थीसिस का नाम है लाइफ बियॉन्ड डेथ। डॉक्टर रेमंड मूडी जूनियर उसकी थीसिस का नाम है लाइफ बियॉन्ड। प्रोफेसर हेरोल्ड शर्मन उसके थीसिस का रीबर्थ का थीसिस का नाम है यू लिव आफ्टर डेथ। डॉक्टर कॉलिन विल्सन लाइफ आफ्टर। मिनी मैंशन ऐसे एक थीसिस है, वो एडगर केसी का जो इन्वेंशंस है उसके बारे में जिन सर्वे विनार लिखा है। ऐसे वर्ल्ड वाइड अनेक स्कॉलर्स रीबर्थ के बारे में बहुत बहुत डीप स्टडी करके संशोधन करके अपना अपना थीसिस को प्रेजेंट किया है। इसी कारण से धर्म वाला क्या भी बोले, हिंदू धर्म वाला अपना धर्म के अनुसार बतावे, दूसरे दूसरे धर्म वाला अपना अपना धर्म के माफिक से बतावे, परंतु साइंस ये कहा है, साइकोलॉजी ऐसे कहा है, आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनादि है, आत्मा है, आत्मा अमर है। इस आत्मा को पुनर्जन्म है। पूर्व जन्म में क्या क्या काम किया, कर्म किया, उसके बारे में क्या क्या फल है, ऐसे रिसर्च इंफॉर्मेशन आज स्पिरिचुअलिस्ट का हाथ में है। जो विचारे आत्मा अविनाशी है, ठीक है, परंतु अदृश्य है, अव्यक्त है, अगोचर है, आंख से नहीं देख सकता है, हाथ से टच नहीं कर सकता, ऐसे आत्मा का बारे में प्रूव करने का सामान्य लोगों को, विज्ञानियों को बताने के लिए तो ये रिसर्च बहुत इंफॉर्मेटिव है, रियलिस्टिक है। इसी कारण से ये आत्मा का बारे में, आत्मा का अस्तित्व के बारे में, आत्मा का पुनर्जन्म, पूर्व जन्म का बारे में, कर्म का बारे में बताने के लिए ये रिसर्च जो इसको स्टडी करने से हम लोग को बहुत मुख्य बात, मुख्य इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मैंने कहा डॉक्टर सतवंत पासरीचा की जो स्टडी है
सिद्धांत है, थीसिस है, उसमें बहुत डिटेल बात है। तो पूर्व जन्म में जो आत्मा मेल थे, नेक्स्ट जन्म में फीमेल भी बन गया है। तो पूर्व जन्म में कोई धर्म में था, दूसरा जन्म में दूसरा धर्म में चले गया है। कोई जन्म में बिजनेस वाला था, दूसरा जन्म में प्रीस्ट बन गया। ऐसे ऐसे बहुत इंफॉर्मेशन उसका थीसिस में हम लोग को लभ्य है। ऐसे सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टडी करके ये कर्मा सिद्धांत को आत्मा जो किया है, पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो, उसके अनुसार जो जन्म भी मिलता है, इसको प्रूव करके कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के द्वारा तो लोगों को नॉलेज प्रेजेंट कर सकता है। भाई बहने, आपका साथ ये विचार को शेयर करने को चाहता हूं। आत्मा तो आप तो मान लिया है, आत्मा के नॉलेज आपके पास बहुत है। आत्मा कर्म जो करता है, वो कर्म को मिनिमम 3 रूप से वर्गीकरण करता है। एक है अकर्म, दूसरा है सुकर्म, तीसरा है विकर्म। अकर्म, सुकर्म, नेक्स्ट विकर्म। नेक्स्ट जो होता है, ये कर्म के अनुसार फल भी होता है। जो पाप कर्म पुण्य कर्म, आत्मा ऐसे बोलने से आजकल के तो एजुकेशन सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी हम लोग बहुत धीरज से इसको प्रेजेंट कर सकता है। डरने की बात नहीं, क्योंकि तो साइंटिफिक एविडेंसेस है। पाप माना क्या है, पुण्य माना क्या है? बॉडी कॉन्शियस की लोग बॉडी कॉन्शियस की कारण से इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। पाप माना जो हमें बुरा काम करता है, हिंसा काम करता है, परपीड़न काम करता है, उसका फल जो मिलता है उसको पाप बताएंगे। पुण्य माना जो परोपकार होता है, उसके फल स्वरूप जो होता है वो पुण्य काम है। परोपकारार्थाय मिदं शरीरम, जो काम वो करता है उसको पुण्य कर्म कहेंगे। परपीड़न काम जो होता है शरीर के द्वारा, उसको पाप कहेंगे। ये पाप और पुण्य के कर्म को मिनिमम 4 प्रकार की विभाग होता है। फर्स्ट विभाग ये है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म माना आत्मा जन्म जन्मांतर में जो कर्म किया है उसको फल स्वरूप से पाप आया है, पुण्य आया है। ये सभी पाप पुण्य की कर्म फल जो है लास्ट जन्म तक भोग कर फिर जो बैलेंस होके वर्तमान जन्म में आता है, इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। नेक्स्ट ये है संचित कर्म। संचित कर्म मना पिछले जन्म में, सिर्फ पिछले जन्म में जो कर्म किया है, पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो, उसको फल स्वरूप जो है उसको प्रेजेंट जन्म में भोगने का जो होता है उसको संचित कर्म कहेंगे। ऐसे तीसरा एक कर्म है आगामी कर्म।
प्रेजेंट कर्म जन्म में जो आत्मा, जो जीवात्मा कर्म कर रहा है, उसमें पाप भी आता है, पुण्य भी आता है, उसके फल नेक्स्ट जन्म में भोगने का होता है। इसको कहेंगे आत्मा। चौथा जो है वो भूमरा कर्म। वर्तमान जन्म में जो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, वही उसका फल वर्तमान जन्म में भी भोगेंगे। इसको कहेंगे पुण्य कर्म, उसको कहेंगे भूमरा कर्म। ऐसे कर्म करने में मानसिक सुख देने का, दुख देने का भी होता है। जैविक द्वारा माना बॉडी के द्वारा दुख देने का, सुख देने का होता है। बॉडी के द्वारा पुण्य के काम, पाप के काम कर्म होता है। ऐसे मन के द्वारा ही पुण्य काम और पाप के काम होता है। दोनों को भी आकर्मानुसार वो भोगने का होता है। इसलिए जो आत्मा कर्मयोगी होता है, सारी अपना शुद्ध कर्म का ईश्वरार्पण करके तो पुण्य कर्म करता है, वो कर्म फल जो होता है वो निस्वार्थ कर्म होता है, उससे बहुत भाग्य मिलता है। ये कर्मा फिलॉसफी में आप सामने चित्र भी देख रहे हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सेवा करता है, कुछ रिच पीपल होता है, वो तो हॉस्पिटल बना के फ्री देता है, उसको रीबर्थ में उसको बहुत आरोग्य मिलता है, हेल्थ मिलता है। एक आत्मा दूसरों को हिंसा करता है, अंग को काटता है, उसको दूसरा जन्म में विकलांग होके जन्म लेता है। आप जानते हैं जो चोर है, चोरी करता है, उसको जेल शिक्षा वर्तमान समय में हो जाता है। आप जानते हैं जो रिच मैन है वो दान पुण्य करता है, वो तो नेक्स्ट जन्म में तो रिच मैन होके जन्म लेंगे, अच्छा फैमिली में जन्म लेंगे। जो व्यक्ति है उसके पास पैसा है, उसके पास विद्या है, उसके पास ज्ञान है, वो तो विद्या दान करने से नेक्स्ट जन्म में वो विद्वान हो जाएंगे। जो कुछ लोग है सिर्फ सेवा लेता ही रहता है, परंतु एक दिन वो पुनर्जन्म में वो तो सेवा देना ही पड़ेगा। ये कर्म फिलॉसफी है। ऐसे डीपेस्ट कर्म फिलॉसफी को अपना लाइफ में देख सकता है। आप बहुत देखा होगा, कुछ बच्चे जन्म के समय में भी अंग विकल हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, डिफरेंट डेम हो जाता है। ऐसे कुछ ना कुछ अंग नहीं होता है। ये क्या है, क्यों है? ये तो अपना डॉक्टर्स जो है वो लोगों का डेफिनेशन अलग है, क्योंकि वो लोग ना ही आत्मा को जानता है, सिर्फ वो बॉडी को जानता है। इसलिए वो लोग क्या बताएंगे? वो लोग जीन्स की, क्रोमोसोम्स की, उसमें जो जीन्स है उसकी दूसरा इफेक्ट बोल देंगे। वो आत्मा को जो नहीं समझा है, वो समझता है वो डॉक्टर, उसको दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। परंतु जो आत्मा ज्ञानी है वो तो मालूम हो जाता है ये विकलांग क्यों हुआ, इसको आंख नहीं क्यों, ये डिफरेंट क्यों, इसको अंग विकल क्यों? क्योंकि कर्म फल जो होता है पूर्व जन्म में दूसरों को जो हम लोग दुख दिया है उसको नेक्स्ट जन्म में, प्रेजेंट जन्म में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे आप तो देखा है, कुछ आत्मा रिचेस्ट फैमिली में जन्म लेता है, राजा का फैमिली में जन्म लेता है, कल्चर्ड फैमिली में जन्म लेता है। कुछ आत्मा जाके स्लम एरिया में जन्म लेता है, पूर फैमिली में जन्म लेता है, न पढ़ने को है, न कपड़ा है, न खाने का है, न रहने का अच्छा मकान भी नहीं है,
ऐसे ऐसे बहुत दुखी समय में, दुख की प्लेस में जन्म लेता है। इसके क्या फल है, कारण क्या है? आप तो जानता है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। ये आत्मा जनन मरण चक्र में है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जनन मरण चक्र तो आत्मा को होता ही है, इसको रोकने को किसी को नहीं होता है। क्योंकि ऐसे बातों में तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। ऐसे कारण को कोई सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसको परिहार कोई नहीं दे सकता है। ये कारण जो होता है, तो नेक्स्ट, ये कारण जो होता है, आप ऑलरेडी आप आत्मा के बारे में रिसर्च को भी तो आप लोग स्टडी कर दिया, ईश्वर की नॉलेज को भी आप लोग प्रोफेसर हो गया, इसी नॉलेज को आप फिर बहुत जानते हैं। ये अपना संस्कृति में, स्पेशली भारत में, ऐसे बहुत ऋषि मुनियों ने, अच्छे स्कॉलर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है। जब जो विज्ञान आया, इसका पहले एस्ट्रोलॉजर्स ऋषि मुनि थे। अगस्त्य महर्षि एक ऋषि थे। अपना तपस्या के अनुसार वो महर्षि ने कुछ लोगों का जातक लिख के रखा है। वो जातक में इतना सुंदर की बात है, और जातक जो रीड करता है, वो ज्योतिषी का प्लेस में जाने से जो व्यक्ति जाता है उसको थंब इंप्रेशन, सिर्फ थंब इंप्रेशन लेता है। सिर्फ व्यक्ति का थंब इंप्रेशन लेकर जाके जो महर्षि अगस्त्य जी ने लिख के रखा था, कभी लिखा था, कौन से समय में जन्म लिया था, वो क्या वो तपस्या किया था, वो उसी समय में लिख के रखा है। वो ग्रंथ में, उसको नाड़ी ग्रंथ बोलेंगे, नाड़ी ग्रंथ में जो व्यक्ति का थंब इंप्रेशन लेके गया है, उसका वो लिखित मिल रहा है। वो लिखित ये है, उसको पढ़ने से जो व्यक्ति अपना जातक सुनने के लिए गया है, उसका नाम उसको बताएंगे। वो व्यक्ति का फादर का नाम बताएंगे, वो व्यक्ति का मदर का नाम बताएंगे। ये तीनों इंफॉर्मेशन उसको मिले, वो हाँ करे, उसको वो आत्मा, वो व्यक्ति कब जन्म लिया, कौन सी डेट में जन्म लिया, कौन सी समय में जन्म लिया, सारी ये जातक कुंडली कहेंगे उसको, वो तो लिख कर दे देता है। कितना आश्चर्य की बात है। कोई माता पिता ने तो एग्जैक्ट डेट में स्कूल में एंट्री नहीं करता है। हाँ, तो इसी समय में था, वो तो जन्म लिया था, उसी समय में कालरा थे, उस समय प्लेग आए थे, उसके समय में 4 महीना हो गया था, ये बच्चे होके ऐसे कुछ बोल के डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता है। परंतु ये महर्षि ने इतना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हमें सुन रहा है, मैं तो ये बात बताने को चाहता हूं, ये फर्स्ट वंडर है। तो ये थंब इंप्रेशन लेके, लेडीज को लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मेल को राइट थंब इंप्रेशन लेकर, वो जातक की जो ये बुक है उसके देखने, ओपन करके देखने से व्यक्ति का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, साथ साथ वो डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम कितना बर्थ में टाइम हुआ, ऐसे ऐसे जो भी कुंडली है, सारी कुंडली एंड लाइफ एट ए ग्लैंस दे देता है। ऐसे जातक का इंफॉर्मेशन देने वाला महर्षि लोग बहुत है इंडिया में। ऐसे महर्षि भृगु भी है, महर्षि शुक्र है, महर्षि, तो ऐसे ऐसे बहुत महर्षि जो अपना अपना समय में जो लिख के रखा है, जो ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष ग्रंथ आज भी अवेलेबल है। एग्जैक्ट नॉलेज 95% तक उसको परफेक्ट नॉलेज उसी समय में
ये आत्मा जाके ऐसे ऐसे मदर के घर में ले जन्म लेंगे, इसका फादर का नाम ये होता है, ये इसका ऐसे ऐसे काम करता है, ये तो ऐसे एजुकेशन होता है, सारे लिख के दे देता है। ऐसे वंडरफुल बात है। ऐसे जो भी भृगु महर्षि हो, अगस्त्य महर्षि हो, शुक्र महर्षि हो, ऐसे ऐसे जो भी ग्रंथ है अवेलेबल है, इंडिया में है, तो उसमें कुछ बातें आपका सामने मैं बता रहा हूं। वो ग्रंथ में आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्ततैव देहिनः। जो मदर के गर्भ में जो आत्मा प्रवेश होता है, उसी समय के पहले भी निर्णय हो जाता है उसका माता का नाम, पिता का नाम, ऐश्वर्य, विद्या, आयु, ऐसे जो इम्पोर्टेंट बात होता है सारी पहले ही निर्णय होके वो मातृ के गर्भ में जाके वो आत्मा जन्म लेता है। यथादेनु सहस्रेषु वत्सो विदन्ति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे 100 कौ का एक ग्रुप हो गया समझिए, उसी समय में एक कौ अपना चाइल्ड को एक जगह में बांधे है, वो एक ग्रुप में जो कौ है उसके बच्चे को छोड़ने से वो सीधा 100 कौ में सीधा अपना मात्र को ढूंढ ढूंढ के जाके वो दूध पिएंगे। ऐसे ही श्लोक में है। ऐसे ही जो भी पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, आत्मा करता है, कितना जन्म लेने से भी वो पाप पुण्य साथ साथ वो आत्मा का साथ जाता है, वो उसकी कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, भूमरा कर्म। ऐसे विधि जो होता है कर्मो फिलॉसफी, वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। जो पाप किया उसको भोगना ही पड़ेगा, जो पुण्य किया भोगना ही पड़ेगा। वर्तमान जन्म में नहीं होगा, दूसरा जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह सिद्धांत है। यह है अपना भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति। इसमें आत्मा का बारे में बहुत बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन स्टडी भी कर सकता है। तो भगवत गीता इसमें एक है। ज्योतिष ग्रंथ है एक है, अनेक है। ऐसे ये आत्मा जन्म में मरण में आने का कारण क्या है, इसकी कारण को मुख्य बात है, 3 कारण है। आत्मा जन्म मरण होने के लिए 3 कारण है। स्वर्ग में नरक में जाने के 3 कारण है। एक है ऋण संबंध होता है। आत्मा जो पाप और पुण्य करता है उसी समय में जीवन में होता है, उस समय में ऋण संबंध होता है। ऋण मना तो आप जानते हैं, कुछ पैसा लिया होगा, कुछ वस्तु लिया होगा, वो तो वापस उसको रिटर्न नहीं किया होगा, उसको ऋण संबंध बोलता है। दूसरा है कर्म संबंध, जो पाप और पुण्य के कारण से ही वो जाके लगता है। तीसरा है कर्म संबंध, सॉरी देह संबंध, जो आत्मा बच्चे होता है, पत्नी होता है, फादर होता है, मदर होता है, ऐसे देह संबंध होता है। ये देह संबंध कारण से भी वो तो मोह होता है, प्रेम होता है। ऐसे जो भी हो आत्मा में कर्म होके रिकॉर्ड होता है, संस्कार होता है, उसको रिटर्न करने के लिए पुनर्जन्म में वही फैमिली में ढूंढना ही पड़ेगा। ये तो ईश्वरीय सिद्धांत भी है, अपना भगवत गीता का सिद्धांत भी है, अपना ज्योतिष ग्रंथ का सिद्धांत भी है। वो तो ये सच बात है। बुरा काम किया दुख की जन्म की व्यवस्था हो जाएगा, अच्छा काम किया सुख की जन्म का व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे कर्मों फिलॉसफी आत्मा को साथ साथ रहेंगे, पुनर्जन्म रहेंगे, पूर्व जन्म रहेंगे, कर्म पाप पुण्य कर्म रहेंगे। भाई बहने,
कुछ बातें आपको सामने रखा हूं, जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। Bhaiji, thank you so much for such detailed and wonderful insights that you have given, especially the scientific part of it also. And I would like to share one thing in this regard, as my Legos family, whole family is sitting in the center and listening to this knowledge. Bhaiji, in Nigerian culture, Nigeria is 50% Muslims and 50% Christians. And whether it is any religion, and there are 10% very minority of traditional rulers, traditional religious people. They call themselves as religious, but they're traditional people. They believe in idol worship and they have their own belief system. Whether it is Christian or Muslims or whichever religion in Nigeria, they believe in rebirth. Nigerian Christians believe in rebirth and they have special names. If a boy has taken birth and they feel that the boy is like the grandparents, then they give a special name which is called as what is if it is a girl, they call it as Etunde. The name starts with Etunde and then they have their own names. And if it is boy, they call it as Baba Tunde. So the earlier ex governor of Lagos state government is Baba Tunde Raji Fashola. So when you listen, Baba Tunde means then they believe in the rebirth and it is their grandfather who has come back into their family. Etunde means grandmother come back into the family. So they seriously believe in rebirth. So it becomes very easy for us. But when you speak it is a rebirth, nobody really believes. Nobody accepts. Even Nigerians don't accept. But when you give this example that who is Baba Tunde and Etunde, when your grandparents are coming back into your own families, then it is rebirth, certainly same souls. So they believe. Am I right, Brother Ola? Brother Inka is sitting. Am I right, Brother Ola? All right, this Yeah. Baba Tunde, Etunde are the rebirth names, isn't it? Yes. Yeah. I had been to Hungary. Yes, please. तो अपना जो सिटी है कैपिटल बुडापेस्ट, Budapest. Hungary. में रहे थे। उधर भी एक टुंडे है, डॉक्टर टुंडे। Dr. Tunde. Must be African or Nigerian. Maybe or may not be, I don't know detail. I was 1 month there and she became, after taking this knowledge, she became a regular student of Baba. Now coming many times she came to Madhuban also. Oh, great. So it is very glad to know because sanskar is there. Atma mein sanskar. Yeah, very true. भले साइंस माने न माने, ग्रंथ माने, परंतु आत्मा अपना कर्म के अनुसार जरूर जन्म देता है। ऐसे की जो है उसके द्वारा कोई भी हो, कोई धर्म वाला हो, right. Great. Our brother would also like to share certain messages that we have got. Brother Francis from Philippines. He says, I appreciate how Dr. Basavaraj provides us concrete examples and studies to help us understand deeper reincarnation and karma philosophy. Having the spiritual and scientific basis help us also have a balanced perspective. I am also learning the Hindi terms. Thank you, Didi Gautami, for the good translation. Even if we know karma philosophy, I feel it is important and helpful that we get regular clarifications and reminders so we can be inspired to create our sukarma and clear our vikarma. Brother Deepak is appreciating. Again, Brother Francis says, thank you for sharing the detail about Nigerian culture. It is an interesting belief. I learned and something new today. Yeah, thank you, brother. Special thanks to the
Gautami ji. Honor. Thank you. All over the world, here and there. So this is an opportunity also in our knowledge. So it is nothing, I'm not doing anything for anybody. It's my personal interest. And I'm also going to translate all these things, all brothers' sessions. Today is the 8th session. So we're going to do all the sessions in English. Audios, you will all receive the audio, especially audios, and we're going to upload on the YouTube also. The video will be, brother will be speaking, but the audio will be in English for your study, because now you are listening to it. But then in case if you want to listen again about any particular aspect, so it will be in your library, YouTube library, so that you can, recollect any time, listen to it, and, you can make your notes or you can share it with others also. So it's really a great opportunity. And it's a big thanks to Brother Basavaraj for sharing these details with the scientific support and helping us to have such holistic approach for the spiritual study of Srimad Bhagavad Gita. I'm sure you must be enjoying, and there's no question, no doubt from anybody, brother. Everyone is very much content and happy with the details that they are getting. Thank you. Jigisha Ben says, thank you. Wonderful. It's wonderful. Thank you, brother. Brother, would you please conduct us some guided commentary? Om Shanti. मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे को ये नॉलेज परमपित परमात्मा शिव जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिया। मैं परमात्मा का स्टूडेंट बना। मैं आत्मा के बारे में ज्ञान लेने के, उसके अनुभूति और अनुभव करने के लिए मेरे को सेलेक्ट किया। बाबा परमपित परमात्मा, आपको मैं कितना धन्यवाद कहूं। पहले मैं समझे थे मैं हूं मन बॉडी, अभी मैं समझा हूं मैं हूं मन आत्मा। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा। मैं अदृश्य आत्मा। मैं अव्यक्त आत्मा। मैं अगोचर आत्मा। शांति स्वरूप आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा। प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं अविनाशी आत्मा। मैं अनादि आत्मा। मैं आत्मा सृष्टि नाटक में
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में 84 जन्म लिया है। अभी है संगम युग। परम पिता परमात्मा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे को ये नॉलेज दिया है, मैं परम धाम निवासी थे, मैं आत्मा परम धाम निवासी थे। परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ परम धाम में विराजमान थे। मैं आत्मा पवित्र आत्मा, मैं पावन आत्मा, मैं निराकार आत्मा, मैं निर्विकार आत्मा। परमात्मा के संतान हूं। मैं आत्मा आत्मा के संतान, बाप समान मैं आत्मा परम धाम में शांति धाम में निर्वाण धाम में मूल लोक में आत्माओं का लोक में परमात्मा का लोक में मुक्ति धाम में मूल लोक में रहने वाला मैं आत्मा। स्वीट साइलेंट होम में रहने वाला मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। स्वप्रकाश आत्मा हूं। चेतन शक्ति आत्मा हूं। परमात्मा के साथ साथ समीप में रहने वाला आत्मा हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अनादि अविनाशी आत्मा हूं। शाश्वत
अमर आत्मा हूं। मैं परमात्मा के साथ हूं, परमात्मा के समीप हूं। मैं आत्मा हूं। मेरा दर्शन, आत्म दर्शन, ज्ञान दर्पण से मेरे को मिल गया। परमात्मा ने ज्ञान दर्पण मेरे को दिया। मैं आत्मा ज्ञान दर्पण में खुद मेरे को मैं दर्शन कर रहा हूं। महान भाग्यशाली आत्मा मैं हूं, क्योंकि मैं ज्ञानेश्वर की संतान हूं। ज्ञानेश्वर की स्टूडेंट हूं। मैं आत्मा त्रिनेत्री आत्मा, त्रिकालदर्शी आत्मा, त्रिलोक संचारी आत्मा, युग युग में साकार लोक में 84 जन्म में जन्म लिया हुआ मैं आत्मा मेरा मूल निवास परम धाम है, पावन धाम है, मुक्ति धाम है, शिवलोक है। परमात्मा का लोक है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ उपस्थित हूं। शांति स्वरूप में, आनंद स्वरूप में मैं उपस्थित हूं। मैं विराजमान हूं। ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti Bhaiji. Thank you for taking us into
a deep journey from the soul world into the all parts of the cycle. And this deeper realization and deeper connection certainly has invoked the deeper peace within us. And the coming sessions, we are going to do it in 2 years. Coming weekend, the first session will be in 2020, and the second session will be in 2021. So we're going to enjoy and celebrate New Year with Bhaiji. That is 27th December and 3rd January is our next sessions. And I'm sure we're going to explore more deeper aspects. And those who are interested, and I think I should call all of you as spiritual scholars. Bhaiji, can we address everyone who are sitting, because these souls are very serious souls. So making time for this purpose on Sunday and Saturday is no less. So even among Brahmins, you're very special. Yes, brother. Your voice is not clear. Voice clearly. You have given a new noble title for all the spiritual souls. Yeah, inspired by you, all are spiritual scholars doing this spiritual study of spiritual philosophy. So I'm sure that soon after the training, you all will be, speaking like already you're speaking, Baba's knowledge, but you'll speak like a spiritual scientist with full of backup, and you can answer any question and you can face anybody with lot of balance and with lot of, confidence, more confidence. And then with lot of light in your eyes. So when you speak with this light of wisdom and light of experience, because this is not just a lecture that Bhaiji is giving. He's giving insights and also he's giving experience. So we can call it as insperience. Insights with insperience. So we are experiencing also and feeling that light. So when we give, we also give both to everyone. Special thanks to Bhaiji for all his sharing time, and because he has sacrificed his time. At this time, it is afternoon in Bharat, where people take rest. So thanks for your, what we can say, he's a spiritual renunciate. So we take a lot of inspiration from you. Thank you so much for your benevolent contribution. Thanks to everyone for being connected. In advance, Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Om Shanti. So you will get the invitation for Christmas celebration and can be connected with Legos. With another stalwart, spiritual stalwart, we'll celebrate our Christmas and New Year. Om Shanti. So everyone can open your videos and say thanks with your one hand or two hand, however you feel. So I once again thank all those who have been connected from Bharat, Ghana, London, Philippines, Lagos, from all the corners of the world. Om Shanti. And special thanks to Bhaiji all the way for the whole team from Hubli.